students, welcome to class 5 computer. Children, we were reading chapter 1 of our book IT Planner. Children, we have already completed chapter. We were doing book exercise. So let us do. Before doing the next exercise, we will first revise what we have done yesterday. So children, yesterday we were doing a pick the correct answer. So बच्चों, you look into your book. आप सब अपने बुक में देखो. First one is machine makes our work. Answer is easy. So first one is machines. Machines makes our work. यहाँ पे blank है, यहाँ हम लिखेंगे easy. Easy लिखेंगे. Option, in option we will take B, that is easy. ठीक है, we will take here, that is easy. Okay, now second is we can play dash on a computer. We can play dash on a computer. On a computer. So the answer is we can play games. Option, which is option C. You can write here, tick on the option C, that is games. And here you can write games. So children, let us read once again. Machines makes our work easy. मशीन हमारे काम को आसान बनाते हैं. तो ऑप्शन बी में हम इजी के सामने टिक करेंगे. देन वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं. तो ऑप्शन सी पे वी विल टिक. वी विल टिक इन फ्रंट ऑफ गेम्स, दैट इज ऑप्शन सी. नाउ machines makes our work easy. We can play games on computer. Now third one is dash. Dash is a smart machine. Dash क्या है? एक स्मार्ट मशीन है. What is a smart machine? Here we have option A, that is computer. C of computer will be capital. The C, because it is the first letter of the sentence, first word of a sentence, first letter of first word of the sentence, you will write it as capital letter. And the answer is computer. और इसके सामने बॉक्स में you will put a tick. So this is tick the correct option. Children, the statement is given. We will read the statement and 3 options are given below that. Among 3 options, one is right. You will tick in the box which one is right. Now, computer is a smart machine. So computer smart machine है. Answer is computer. You will tick in the box in front of computer. So children, this is all about tick the correct answer. Machine makes our work easy. We can play games on a computer. Games tick. Computer is a smart machine. So you will take it computer. Now, question number B. We will do question number B. We have done yesterday. We will revise once again. Question number B is true and false. So we have right T for true and F for false. हम T लिखेंगे true के लिए, F लिखेंगे false के लिए. We will write T for true
true and F for false. Now we will read the statement one by one. First statement is, सबसे पहला statement है machines are man-made things. यहाँ पे क्या है? machines are man-made things. machines क्या होती है? man-made things होती है. तो is it true? Yes, we have studied in the chapter that all the machines are made by man. That is why they are man-made thing. तो ये सेंटेंस ट्रू है. और यहाँ पे इस बॉक्स में आप लिखेंगे ट्रू. इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? ट्रू. T for ट्रू. ना बी. बी क्या है? यहाँ पे 1 2 डाला तो 1 2 डाला. ठीक है, बुक में आपके 1 2 है. तो 2 इज अ कंप्यूटर. A computer can do many things. कंप्यूटर बहुत सारी चीजें कर सकता है. So it is also true. As we have studied in the chapter, computer can do many things. वो हमारे लिए बहुत सारे काम करता है. हमें स्टोरी सुनाता है, हमें मूवी दिखाता है, और क्या करता है? हमारे लिए लिखने का काम करता है, कैलकुलेशंस करने का काम करता है, गेम्स खिलाता है. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. देन उसके बाद फिर हमें ड्राइंग और कलरिंग भी कराता है. सो इट कैन डू मेनी थिंग्स. दैट इज वाई कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो यू विल राइट टी. नाउ थर्ड वन, मैनुअल. मैनुअल मीन्स made by man. Manual machines are run on electricity. Is it true, children? Is it true? क्या ये सही है कि मैनुअल मशीन क्या होता है? मेड बाय मैन. तो मैनुअल मशीन तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलेगा ना. मैनुअल मशीन जो मैनुअली चलता है, जो मैन चलाता है. मैनुअल मशीन वो मशीन है जो मैन खुद चलाता है. जैसे कि रिक्शा, देन बाइसिकल, टाइपराइटर, ये सारी चीज़ें हम खुद अपने हाथ से चलाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मैनुअल. तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलेगा. तो ये रॉन्ग है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ. यू राइट एफ. अभी हमने जितना किया, we'll read that much. Machines are man-made things. True है? Machines are man-made things. A computer can do many things. ये भी सही है. Computer can do many things. Manual machines are run by electricity. ये है false. क्योंकि manual machines are run by, कौन चलाता है manual machine? Man चलाता है. तो हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों रब करेंगे और आगे लिखेंगे. 4 में हमारे पास क्या है? 4 में वी हैव अ कार इज अ मशीन. कार क्या है? कार क्या है? कार इज अ मशीन. यस, इट इज अ मशीन. सो यू विल राइट हियर टी. टी फॉर ट्रू. हमने पढ़ा है ना, कार इज अ मशीन. कार इज अ मशीन विच हेल्प्स अस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हमारे में एक जगह से दूसरे जाने में वो मदद करती है, इसलिए हम उसको मशीन कहते हैं. ठीक है, तो वो मशीन है जो मूवमेंट में हेल्प करती है. मशीन भी हमने बहुत तरह के पढ़े थे. कुछ हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ हमें मूव करते हैं, और कुछ हमारे काम को आसान बनाते हैं. तो उसमें से क्या है? कार हेल्प्स अस टू मूव. सो इट इज ट्रू. लास्ट स्टेटमेंट इज लैपटॉप. लैपटॉप इज अ मशीन. इट इज मेड बाय मैन. ठीक है, लेकिन इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नॉट अ मैनुअल मशीन. ये मैनुअल मशीन नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो यहाँ लिखा है मैनुअल, तो दैट मीन्स ये गलत है एंड योर स्टेटमेंट इज फॉल्स. हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. यहाँ पे लिखोगे एफ. सो योर स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो लेट अस रीड. मैनुअल मशीन्स आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इट इज फॉल्स. मैनुअल मशीन्स आर रन ऑन बाय मैन. मैनुअल मशीन को मैन चलाता है. अ कार इज अ मशीन. ट्रू.
लैपटॉप इज अ मैनुअल मशीन, ये भी फॉल्स है क्योंकि लैपटॉप क्या है, इट इज रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट इज an electronic machine. Now this is all which we did yesterday. Now today we are going to do our next topic, that is fill in the blanks. हमें blanks दिए हुए हैं मिसिंग लेटर्स के फॉर्म में, दैट वी आर गोइंग टू डू. तो आज का हमारा काम है सी, क्वेश्चन नंबर सी, FILL fill in the blanks. Fill in the blanks. ठीक है, fill in the blanks in the following. In the following. In the following. हमको कहाँ fill in the करना है? Following questions में. तो फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर इज अ, हमने वी हैव read the chapter, we have understood many things. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ, लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर. कंप्यूटर इज अ computer is a क्या दिया हुआ है, लेट अस सी. एम है, एम के बाद देयर इज अ ब्लैंक, हम यहाँ ब्लैंक डालेंगे, फिर इट इज सी, देन देयर इज अ ब्लैंक, ठीक है, फिर देयर इज आई एन डैश. क्या है ये? एन नहीं है, ये ई है, फिर उसके बाद यहाँ पे डैश. तो एम इज गिवन, सी इज गिवन, I is given, E is given. Now we are going to fill the missing letters and complete the word. So computer is a, what is computer? Computer is a machine. So that means it is machine. MACHINE. So children, in the beginning itself I told you to write, learn all these spellings. शुरू में मैंने बोला था ना आपको ये सारी स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए आपको काम आएगा. By now you must have learned all these spellings. ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स आप याद करोगे तो आपको काम आएगा. ठीक, so you have to learn these, some of these spellings which are very important. So computer is a machine. Now second one is trees and flowers. Flowers are things. Trees और flowers कैसी चीज़ें होती हैं? As we have studied, we have two types of things. हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं. हमारे आसपास जितनी भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो घर के बाहर है या घर के अंदर है. These are of two types. One is natural and the other is man-made. एक नेचुरल है जिसे नेचर बनाता है, which occur naturally, और दूसरा है man-made. तो यहाँ पे ट्री और फ्लावर किस तरह की चीज़ है? These are, let us see what is given here. यहाँ पे हमारे पास है एक और बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7. तो लेट अस सी, यहाँ पे n लिखा हुआ है, n लिखा है यहाँ पे, ठीक है, n, फिर t is also given, u is also given, एक और चीज u is also given, then at last l is also given. Now we have how many blanks? P should be here, P यहाँ होगा और u यहाँ होगा, ठीक है. और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे l लिखा हुआ है, ठीक. तो यहाँ पे हमको करना है, एक यहाँ लिखना है, 1 here, your dear friend, 1 here. Natural, NATURAL. तो फ्लावर, ट्रीज एंड फ्लावर्स आर नेचुरली अक्रिंग थिंग्स. ये नेचुरली मिलते हैं, इनको नेचर ने बनाया है, ठीक है. तो ट्री और फ्लावर्स जो है कैसे अकर करते हैं, कैसे मिलते हैं?
नेचर में मिलते हैं, एंड इट इज मेड बाय नेचर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल, NATURAL, नेचुरल. नाउ थर्ड वन इज कंप्यूटर. कंप्यूटर can tell you a दो चार क्या करता है? S what else computer tell us? फिर उसके बाद they have given O Y, STORY, story. Computer can tell you a story. कंप्यूटर हमें क्या सुनाता है? स्टोरी. तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज कंप्यूटर इज अ मशीन. यू आर गोइंग टू फिल द वर्ड्स विच आर मिसिंग. हमें इस बॉक्स में वी विल राइट दोज वर्ड्स विच आर मिसिंग, जो कि गायब है. सम वर्ड्स आर गिवन एंड सम आर मिसिंग. We will write only the missing word. For that we have to learn the spelling. ये सारी स्पेलिंग हमको आनी चाहिए, then only we will be able to fill it. यहाँ पे हमें क्या क्या नहीं था? P नहीं था, R नहीं था. Two letters were not there. STORY, story. Computer is a machine. Trees and flowers are things, natural things. Computer can tell you a story. Computer can tell you a story. Next one is, so children, let us revise all the three and then do next one. Computer is a machine. Trees and flowers are natural things. Computer can tell you a story. Computer is a machine. Trees and flowers are things. Which type of things? Natural things. Computer can tell you a story. Now let us do the fourth one. Fourth one is four. A computer never makes here we make a box. 1 2 3 4 5 6 mistake M. फिर क्या दिया हुआ M के बाद? M is given, I S T is also given, S T A K is also given, E M A. Remaining words you will write. So remaining missing words will be written by us. So this is M A S M I S mistakes. MISTAKES, mistakes. MISTAKES, mistakes. Computer, a computer never makes mistakes. Now next one is fifth one. A computer computer can show you a movie. M O V I E. यहाँ पे you will write M is given for you, V is also given for you, E is also given. You will only write O and I. So this is, a computer can show you a movie. So children, these are the features of computer which we have studied in the chapters. Features means all the facilities which
कंप्यूटर प्रोवाइड्स टू अस और गिव्स टू अस। सो ये सारी फीचर्स हैं कंप्यूटर के जो हमको कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमको कंप्यूटर हमने बनाया था या जिसकी वजह से कंप्यूटर हम अपने घर में रखते हैं। सो चिल्ड्रन वंस अगेन विल रीड, look into your book. A computer is a machine, M-A-C-H-I-N-E, machine. Trees and flowers are things. Trees और flowers कैसी things होते हैं? Natural things. As they occur naturally, they are natural things. Computer can tell you a story. Computer हमारे लिए क्या सुनाता है? Story सुनाता है. Computer never makes mistake. M-I-S-T-A-K-E-S, mistakes. A computer can show you a movie. Computer हमें मूवी भी दिखाता है. So these are the features of computer. So you will complete this by filling the missing words. Now question number D. Question number D में क्या है? Tick the machines used in your home. Children, we have studied about all types of machines which are found in our house. ठीक है, तो जितनी भी machines हमारे घर में होती है हमने सबके बारे में चैप्टर में पढ़ा है और हमने समझा भी है. ठीक है, तो अब हम we will see the pictures of these machines and tell which all machines are found at home. कौन-कौन सी मशीनें हम घर पे रखते हैं. जिसको हम घर पे रखते हैं उसके बॉक्स में कॉर्नर में एक बॉक्स दिया है जिसमें हम टिक करेंगे और जिसको नहीं रखते हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे. सो लेट अस सी. ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है. In question number D, we have pictures. So these pictures can't be drawn. So I will write the name. As I can't draw these pictures on board, so I will write the names. So tick, T-I-C-K. Tick. Okay. Tick. This. Tick. Tick the machine. किसको tick करना है? We have to tick the machines. We have to tick the machines used in, जो हम अपने घर में यूज करते हैं. ठीक है, पाए जाने से भी मतलब नहीं, जो हम अपने घर में यूज करते हैं. ठीक है, यूज्ड इन आवर होम्स. फर्स्ट पिक्चर किसकी है? हमारे पास यहाँ पे 3 पिक्चर्स है. 1, 2, we have second picture and we have third picture. और एक और पिक्चर है जो कि we have first picture, second picture and third picture. ये है third picture. ठीक है, अब फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें क्या बना हुआ है? B-U-S, बस. किसकी पिक्चर? We have the picture of bus in first picture and here we have a space to put a tick. If this object or the thing is used in your house, we will put a tick in this box. Similarly, we have B-I-C-Y-C-L-E, bicycle. ठीक है, बाइसिकल की पिक्चर है. फिर यहाँ पे तीसरी पिक्चर हमारे पास क्या है? तीसरी पिक्चर है हमारे पास टीवी की. टेलीविजन, टीवी. तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे. अब क्या करेंगे? हमें कौन से पे टिक करना है? We are going to tick on the object which are found or which are used in our house. बस हम अपने घर में यूज करते हैं बच्चों. You can see the picture of bus. Here you have first picture, that is bus. Do you use bus in your house? No, we don't use bus in our house. So यहाँ पे हमको tick नहीं करना. We are not going to put a tick over here. But second picture is of bicycle. So do we have bicycle in our house and we use also? Yes, we use bicycles. So you will put a tick over here. हम यहाँ पे tick करेंगे. क्या करेंगे? Yes, we use bicycle in our house. फिर उसके बाद TV also we use in our house. हम TV को घर में यूज करते हैं, बाइसिकल भी यूज करते हैं, लेकिन हम बस को नहीं यूज कर सकते. So we don't use bus in our house. We don't have bus in our house. Or we don't use bus in our house. लेकिन उसके बाद समझ में आया? हमारे पास यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं. The first picture is of bus. You can see in your book there is a bus in first picture. Then there is a bicycle in the second picture, and then there is TV in the third picture. अब फर्स्ट पिक्चर में जो बस है, हम बस घर पे यूज नहीं करते. घर पे हमको कहीं आना जाना है तो क्या हम खुद से बस चला करके यूज करते हैं? नो.
और लेकिन सेकेंड पिक्चर जो है बाइसिकल की है, हम पर साइकिल चला करके बाजार शॉप्स में जा सकते हैं, तो हमारे घरों में होती है बाइसिकल, इसलिए हमने यहाँ पे वी हैव पुट टिक ऑन इन द कॉर्नर इन द बॉक्स. वी आर गोइंग टू टिक ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड इन आवर होम्स. तो bicycle is used in our homes and television is also used in our homes for our entertainment. So हमने यहाँ पे भी टिक किया, we have put a tick here also. So these two are the substances, objects which are used in our house. ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में यूज होती हैं. So children, this is question number D. Tick. Tick है ये the machines used in our homes. ये machines है जो हमारे घर पे यूज होती हैं. ये क्या है? बस है, बाइसिकल है, टीवी. ठीक है, ये टीवी है. ये तीनों चीज़ों में से बस इज नॉट यूज्ड इन आवर हाउस, सो वी हैव पुट क्रॉस ओवर हियर. Bicycle is used in our house, so we have put tick here, and television is also used in our house, so we have put a tick here. So children, these exercises will be done in the book itself. आप इन सब exercises को जो भी मैं करा रही हूँ ये सब आप बुक में करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की हमारे पास कॉपी नहीं है. We are not going to make a notebook for a computer. हमने पतली सी कॉपी बनाई थी जिसमें we'll be writing the difficult words and learning it. And for book exercises we'll be doing in the book itself. Now, question number E. हम करेंगे क्वेश्चन नंबर E. क्वेश्चन नंबर E में हमारे पास है E. Children, as I have told you, we have two types of things. One is man-made. एक man-made है, M-A, and man-made. And the other type of thing is natural. Natural. So here we have some picture. In question number E, we have some picture. Can you see here? Here we have some picture in question number E. We are going to identify these pictures and find out which one is made by man and which one is made by nature. So the ones which is made by man, for below that you will write capital M, and the one which is made by nature you will write capital N. यहाँ पे लिखेंगे capital N. तो जो pictures है उसमें जो बॉक्स बना हुआ है, या सर्कल नहीं है, बॉक्स है, तो बॉक्स में आप लिखेंगे M. अगर मैन ने बनाया तो यू विल राइट M. अगर नेचर का में बना हुआ से बना हुआ है, नेचर हैज मेड, तो यू विल राइट M. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं. सबसे पहले पिक्चर आपके पास क्या है? राइट M अगेंस्ट द मैन मेड थिंग्स एंड N अगेंस्ट द नेचुरल थिंग. तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ, यहाँ पे है कंप्यूटर, बॉक्स है. देन सेकेंड पिक्चर इज ऑफ ट्री. ये है ट्री. दिस इज ट्री. ठीक है, ये किसकी का पिक्चर है? ट्री का. ये ट्री है. एंड देन यू हैव अ मोबाइल. यहाँ पे है एक मोबाइल. ये है मोबाइल. ठीक है. अब उसके बाद पिक्चर है फ्लावर का. यू हैव अ फ्लावर. ठीक, अब एक फ्लावर है. अब ये जो मोबाइल है इसको भी बॉक्स में डाल दो, और इसको भी हमने चलो बॉक्स में डाल दो. ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज मेड बाय हूम. कंप्यूटर किसने बनाया? चिल्ड्रन, कंप्यूटर ने किसने बनाया? कंप्यूटर को मैन ने बनाया. तो मैन का M होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे M. Here you will write M. Computer is made by man. Then tree. Tree is made by man. You know, tree occurs naturally in the nature. That means it is made by nature. तो हम यहाँ पे लिखेंगे N का N, नेचुरल का N. And मोबाइल फोन इज मेड बाय हूम? मोबाइल फोन किसने बनाया? मोबाइल फोन इज अ मशीन एंड इट इज मेड बाय मैन. So here we will write M. अब यहाँ पे फ्लावर है. फ्लावर occurs in nature, so it is made by nature. It is a natural thing and it is made by nature. So children, first picture is of computer. As we know, computer is a machine. Computer क्या है? Computer एक machine है. I always keep on telling you, computer machines are made by man. Machines को man ने बनाया है. क्यों बनाया है?
कंप्यूटर मशीन्स डिवाइस है जिसको मैंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, अपने काम को आसान करने के लिए बनाया है, ठीक है। चाहे हम उसे घर पे यूज़ करते हैं, दोज मशीन्स विच आर यूज्ड इन होम्स, और सम मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड आउटसाइड द हाउस, फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए बनाया हुआ है। तो computers are made by man, so that is why you have written here capital M. M for man. Here trees are found in nature naturally, they occur naturally, so they are called natural, and you will write N here for natural. Now mobile phone, once again mobile phone is a machine. Mobile phone भी एक machine है ना, तो उसको हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, और हम इसलिए उसको कहेंगे मैन मेड थिंग। सो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल M, ये हो गया कैपिटल M। ना अब ये हो गया आपका फ्लावर। फ्लावर किसने बनाया है? फ्लावर भी नेचर ने बनाया है, हमने तो बनाया नहीं, मैन ने तो बनाया नहीं है, तो फ्लावर भी नेचर में मिलता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज नेचुरल। तो यहाँ पे राइट N फॉर नेचुरल। अंडरस्टूड children? Here we have two words, one is man made, made by man, and other is natural. वो सारी चीज़ें जो मैन ने बनाई है उसे हम मैन मेड कहते हैं, उसके लिए हम M लिखेंगे, और वो सारी चीज़ें जो नेचर में हमें मिलती है उसे हम नेचुरल लिखेंगे, और उसके लिए हम कैपिटल N लिखेंगे। तो हियर वी हैव 4 पिक्चर्स, कंप्यूटर, ट्री, मोबाइल एंड फ्लावर। कंप्यूटर इज अ मशीन, एज वी नो कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क ईजी। तो कंप्यूटर एक मशीन है जिसे मैन ने बनाया है, और उसने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है ताकि उसका काम आसानी से हो जाए, कम समय में हो जाए, और उसका एफर्ट भी कम लगे, तो उसे हम मशीन कहते हैं। मशीन इज ऑलवेज मेड बाय मैन, तो ये हो गया मैन मेड मीन्स M। और दूसरी चीज़ है ट्री। जैसा कि हम जानते हैं ट्री इज फाउंड इन नेचर, ट्री को नेचर ने बनाया है, तो हम इसको कहते हैं नेचुरल। तो वी विल राइट कैपिटल N फॉर नेचुरल। यहाँ पे है मोबाइल। मोबाइल किसने बनाया है? मोबाइल बनाया है मैन ने। अगेन मोबाइल इज अ मशीन, मोबाइल इज मेड बाय मैन इन ऑर्डर टू मेक हिज लाइफ ईजी, ठीक है, अपनी लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए बनाया है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैन मेड थिंग, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल M। उसके बाद यहाँ पे है फ्लावर। फ्लावर अकर्स इन नेचर, मतलब फ्लावर हमको नेचर में मिलता है, दैट मीन्स इट इज मेड बाय नेचर, इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे कैपिटल M। So this is the exercise, and then we will go through the exercise once again. First we have done fill in the blanks in the following, ठीक है। तो हमने fill in the blanks किया था, जिसमें हमने फर्स्ट वाला किया था कंप्यूटर। Look into your book children, then you will understand. तो जो भी अभी we have done, we will go through once again. First one is a computer is a machine. जैसे कि we have studied in the chapter, computer is a machine. तो यहाँ some of the letters are given and some are missing. We are going to complete the word by filling the missing letters. यहाँ पे हम missing letter को fill करके फिर अपना काम complete करेंगे, मतलब नाम जो भी यहाँ पे पूछा उसको complete करेंगे। So a computer is a machine, M-A-C-H-I-N-E, machine. Then trees and flowers are things. Trees और flowers जो होते हैं वो चीज़ होते हैं। नेचुरल कैसी चीज़ होते हैं? नेचुरल, N-A-T-U-R-A-L, नेचुरल, ठीक है। कंप्यूटर कैन टेल यू अ स्टोरी। कंप्यूटर हमें क्या बताता है? स्टोरी बताता है, S-T-O-R-Y, स्टोरी। तो गिवन S इज गिवन, O इज गिवन, Y इज गिवन, तो तुमको क्या लिखना है? वी विल राइट ओनली T-N-R, S-T-O-R-Y, स्टोरी। A computer never makes mistakes, M-I-S-T-A-K-E-S, कंप्यूटर कभी भी गलतियाँ नहीं करता। तो M is given, you will write S-T-K-E is given, you will only write I, फिर S-T-A-K-E-S, mistakes. A computer can show you a movie, M-O-V-I-E, movie। कंप्यूटर हमें क्या दिखाता है? मूवी दिखाता है। इट ऑल्सो शोज अस मूवी, तो कंप्यूटर हमें मूवी भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द मशीन्स यूज्ड इन आवर होम्स। वी हैव 3 पिक्चर्स, हमारे पास 3 पिक्चर है, तीनों पिक्चर में से वी हैव टू फाइंड आउट विच इज़ यूज्ड एट होम्स। जो चीज़ें घर पे यूज होती हैं उसमें हम लिखेंगे होम्स, ठीक है, और उसमें हम टिक करेंगे।
जैसे कि फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ बस, पहली पिक्चर किसकी है, बस की है. डू वी यूज बस इन आवर हाउस, होम्स? बस को घर में यूज नहीं करते हैं. फिर उसके बाद बाइसिकल है. डू वी यूज बाइसिकल इन आवर होम्स? क्या हम अपने घर में बाइसिकल को यूज करते हैं? यस. सो यू विल पुट अ टिक इन द कॉर्नर. देयर इज अ बॉक्स, देयर इन दैट बॉक्स यू विल टिक एंड फॉर बीइंग यूज्ड इन द होम्स. घर में यूज होती है साइकिल, इसलिए हम उसके साइकिल वाले बॉक्स में कोने में जो बॉक्स है उसमें टिक करेंगे. उसके बाद क्या है, टेलीविजन. टेलीविजन के कॉर्नर में भी एक बॉक्स दिया हुआ है. टेलीविजन भी हम घर पे यूज करते हैं, इसलिए हम कॉर्नर में टिक करेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर ई. राइट एम अगेंस्ट द मैन मेड थिंग्स. जो मैन मेड थिंग्स होती है उसके सामने हम कैपिटल एम लिखेंगे. और जो नेचुरल, जैसे कि हमने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज मैन मेड थिंग्स, तो मैन मेड थिंग्स के लिए वी विल राइट एम एंड नेचुरल थिंग्स के लिए वी विल राइट एम. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं. वी हैव सम पिक्चर्स. फर्स्ट वन इज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज अ मैन मेड थिंग और अ नेचुरल थिंग? कंप्यूटर इज अ मशीन and it is made by man. So that is why you will write M in the box below computer. Then tree. Tree occurs naturally, so you will write N for tree. You will write N for tree. Tree के नीचे आप N लिखेंगे क्योंकि वो naturally occurring thing. फिर है मोबाइल फोन. मोबाइल फोन किसने बनाया है? मैन ने बनाया है, तो मैन मेड थिंग है. तो यहाँ पे आप कैपिटल M लिखेंगे. ठीक है. आप क्या लिखेंगे? कैपिटल एम. और फ्लावर क्या है? फ्लावर. फ्लावर क्या है? फूल. फूल इज ऑल्सो नेचुरली अकरिंग थिंग, सो यू विल राइट एम बिलो फ्लावर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ. क्वेश्चन नंबर एफ क्या है? राइट फॉलोइंग नंबर लेटर्स ऑफ English alphabet. One has been done for you. So children, here you are going to write the position of the letter in English alphabet. यहाँ पे आप क्या करोगे? ABCD पढ़ते हो ना? ABCD A to Z तक. ABCD A to Z तक. ठीक है. अब जब हम ABCD A to Z तक लिखते हैं तो सबकी अपनी पोजीशन होती है. जैसे कि A comes at the first position, B comes at second position, C comes at third position, D comes at fourth position, E comes at fifth position. तो इसीलिए सबका पोजीशन होता है, सबकी नंबरिंग होती है. ठीक है. अब नंबर के हिसाब से सबको अरेंज करने को हम क्या कहते हैं? नंबर के हिसाब से हमको सबको अरेंज करने को हम कहते हैं उसकी पोजीशन. जैसे कि यहाँ पे A B C D E F, लास्ट अल्फाबेट क्या है हमारा? Z. Z तक हर लेटर की क्या होती है? नंबरिंग होती है. जिस पोजीशन में वो आते हैं उसमें उनका नंबर होता है. तो यहाँ पे हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. क्या क्या दिए हुए हैं? Here we have 3, that means third. अब थर्ड लेटर कौन सा है इंग्लिश अल्फाबेट का? वो हम लिखेंगे. फिर उसके बाद है 15. थोड़ा सा हम किनारे से लिखते हैं ताकि हमारा पूरा आ जाए. 3RD, थर्ड ये हो गया. देन सेकेंड वर्ड इज 15th, देन थर्ड इज 13th, देन वी हैव 16th, 21 यानी 21st, देन 20th हमारे पास है 20th, then we have 5th, then we have 18th. तो ये हो गया लेटर्स. ठीक. ये क्या हो गया? लेटर हो गया. उसके बाद इन सब लेटर्स की पोजीशन, ये सब नंबरिंग जो पोजीशन है ये सारे लेटर्स के ABCD में. ठीक है. अब ABCD में थर्ड लेटर क्या होता है? ABCD में थर्ड लेटर क्या होता है? थर्ड लेटर होता है C. ठीक है. 15 क्या होगा? 15 A B C D E F G H काउंट करेंगे तो 15th में क्या आ जाएगा? 15 हो जाएगा. सबसे पहले चलो ABCD पढ़ लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद तो हम पहले ABCD पढ़ करके आएंगे, फिर उसके बाद हम कल के क्लास में आगे का करेंगे. ABCD की नंबरिंग करेंगे और कल के क्लास में आगे करेंगे. ओके.
Till then, thank you.